So I will quickly revise what I took in the last lecture. ज़्यादा कुछ कवर नहीं हुआ था, बट जितना भी हुआ था was important because टेक्स्ट बुक्स में करेक्शंस है, बहुत सारे करेक्शन है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में टेक्स्ट बुक में लिखा है like charges attract each other and unlike charges repel each other, which is wrong. Like charges will repel each other and unlike charges will attract each other. This is right. Okay. So force of attraction is only between unlike charges, a positive and a negative, and force of repulsion is between both positive or both negative charges. This is correction. बुक में गलत लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में, राइट। तो मैंने इसलिए पहले ही क्वेश्चन दिया था आपको that please refer notes. Then next question is, if we have one charge q1 and other charge q2 which are separated by distance r, what is the force of attraction or repulsion between these two charges? That force of attraction or repulsion is given by Coulomb's law. F is equal to capital K, where capital K is some constant of proportionality, q1 q2 by r square, right? Then this K depends on, the value of K depends on सराउंडिंग, मतलब मीडियम, बेसिकली कौन से मीडियम में आपने चार्जेस को रखा है, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ के आल्सो डिपेंड्स ऑन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग एसआई यूनिट और यू आर यूजिंग एमकेएस यूनिट। अगर मैंने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो उस केस में ये के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एफ वैक्यूम, where epsilon 0 is permittivity of free space. परमिटिविटी का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, कोई बुक का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन पेनिट्रेट थ्रू अ मीडियम, कितना इजीली इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है उस मीडियम में, या फिर कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल मीडियम के अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने अभी तक नहीं सीखा है, वो आएगा आगे, बट दिस इज epsilon 0 is property of the medium in which charges are kept. So if you have both charges in vacuum, force between two charges in vacuum is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. If you keep the same charges at the same distance but in some different medium, so you have 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. If you divide these two, you will get F vacuum upon F medium is equal to epsilon upon epsilon 0, which is called as relative permeability, because epsilon is absolute, sorry, permittivity. Epsilon is absolute permittivity of medium, epsilon 0 is permittivity of free space, epsilon r is relative permittivity, राइट। इसी को आप बोलते हो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। हमने जब दो चार्जेस को एट डिस्टेंस आर वैक्यूम में रखा तो फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1, उसी को मीडियम में रखा तो फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2। epsilon 0 is permittivity of free space, epsilon is absolute permittivity of the medium। जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 का रेशो, और उस रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। और उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक हमने कल देखा था, फिर हमने ये दो पॉइंट्स में लिखा भी था, दैट एप्सिलॉन r is the ratio of dielectric constant is the ratio of force between two charges in vacuum to that of
the force between the same charges at same distance in a given medium. Okay, यहां तक हमारा कल हुआ था. Now the question is, if you notice something here, इसको हमने k या फिर इसको हमने epsilon r बोला है, right? So what we are saying, F vacuum upon F medium is nothing but dielectric constant k. और ये जब k मैं लिख रहा हूं, this k is small k, okay? कैपिटल K यहाँ पे है, this is capital K. Proportionality constant, this is small k. So this ratio force in vacuum to that of medium is equal to dielectric constant or relative permittivity. This tells you something. For example, what does it tells you? अगर मैं एक काम करता हूं, इन दोनों चार्जेस को उठा के मैं वाटर में रख देता हूं, एंड for water the value of K dielectric constant is 80. So force between two charges when in vacuum to that of force between the same two charges when they are in water is equal to 80. Matlab, what we can conclude from here is force between the two charges when in water is equal to force between them when in vacuum divided by 80. मतलब कम हो गया force, right? So the force between two charges is reduced when you keep these two charges in some medium, right? So someone asked me yesterday on this particular point, okay, how does force reduce? So ये equation tells us that when you keep two charges in any medium, the force reduces. For water, it reduces by a factor of 1/80. Okay, मतलब अगर वैक्यूम में 800 न्यूटन का फोर्स होगा, वैक्यूम में 800 न्यूटन का फोर्स होगा, तो वाटर के अंदर 800/80 मतलब सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स होगा, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज, अ बिग चेंज, राइट? गुड. तो क्वाइट सिंपल थिंग, इट इज वेरी सिंपल थिंग. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्विकली जितना भी अभी बताया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे एंड देन we'll move ahead with next topic. Okay, so we'll quickly note down what I have told you so far, and it is very simple. बहुत सिंपल सा चीज है, nothing difficult over here. So I'm just continuing with what I explained you yesterday. कल हमारा जितना भी होता उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं आज. तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि when you keep two charges in vacuum and then you keep the same charges in water, the force between these two charges reduced by a factor of 1/80. ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे आपको याद रहेगा कि मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इन वैक्यूम, राइट? ओके, सो द फोर्स between two point charges Q1 and Q2 placed at a distance R in a medium of relative permittivity epsilon r is given by, इतना लिख दूंगा मैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is given by, right? So the force between two particles, just a minute, the force between two particles, two charges, point charges Q1 and Q2, if the medium has relative permittivity epsilon r or dielectric constant k, is given by
Of course, I need to correct spelling here also. So constant is given by, right. So you will be writing this as F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 इंटू इप्सिलॉन 0 r या फिर इप्सिलॉन 0 k, जैसा भी लिखना चाहो। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इन मीडियम आप क्या लिखते हो, 1/4 पाई इप्सिलॉन q1 q2 by r स्क्वायर, राइट। हमको पता है दिस इज फोर्स इन मीडियम। बट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इप्सिलॉन r हमने क्या लिखा था, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0, राइट, या फिर और k इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। तो आप लिख सकते हो यहां से इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन r, और यू कैन राइट डाउन इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0 k। दोनों दोनों ही फाइन है। आई मीन यू कैन राइट बोथ ऑफ देम। You can write epsilon as epsilon 0 into epsilon r, or you can write down epsilon as epsilon 0 k. Both are okay. सिर्फ एक को रिलेटिव परमिटिविटी बोला है epsilon r को, और k को बोला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोथ आर फाइन, राइट, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप दो चार्जेस को मीडियम में रखते हो तो यहाँ पे epsilon 0 नहीं लिखा जाता। जब मीडियम में रखते हो, तो जब वैक्यूम में रखते हो तो इप्सिलॉन 0 लिखा जाता है, क्योंकि उस केस में k की वैल्यू 1 हो जाती है या फिर इप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाती है। तो उस केस में इप्सिलॉन और इप्सिलॉन 0 सेम होता है व्हेन इन वैक्यूम। मैं रिपीट कर रहा हूं, इजी है, करेक्ट। तो जब आपने दो चार्जेस को मीडियम में रखा है उस केस में 1/4 पाई इप्सिलॉन लिखना। बट इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन r इंटू इप्सिलॉन 0, और इप्सिलॉन इज इप्सिलॉन 0 k। आई प्रेफर टू गो विद दिस, ओके, आई प्रेफर टू गो विद दिस। बट इन एनी केस आपके ऊपर है, डजंट मैटर रियली कि आपको इप्सिलॉन r लिखना है या फिर k लिखना है, ये आपके ऊपर हो गया, राइट। देन फॉर वाटर the relative permittivity is 80, right? Therefore what you can write is F is equal to 1/4 pi epsilon r into epsilon 0 q1 q2 by r square, okay। Therefore F is equal to, और आपको पता है what you can do is, instead of substituting values, I will just say for water is this, and for vacuum F vacuum is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, है ना, ये वैक्यूम के लिए। therefore when you divide these two, so when you divide F water by F vacuum, you will basically get, जब डिवाइड कर दिया तो क्या बचा आपके पास, 1/epsilon r, बाकी सब तो हो गया कैंसल आउट। Therefore you can say force between two charged particles in water is equal to force between them in vacuum upon epsilon r, but epsilon r for water is 80, right? What does that mean? It means that 2 point charges, when kept in water, the force between these 2 point charges reduces by a factor of 1/80। 1/80 से कम हो जाएगा वो, okay। So simple thing, so you need to mention this means that when 2 point charges are placed, where are placed, of course some distance apart in water, the force between them is reduced to 1/80th of the force between them in vacuum, force between them in
vacuum, right? Thus what we can conclude, हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि मटेरियल मीडियम जो है वो फोर्सेस को कम कर देता है बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, है ना, क्योंकि डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर हुआ, मतलब यू कैन से दस material medium, thus a material medium reduces the force between charges by a factor of how much, by a factor of relative permittivity, by a factor of its relative permittivity, of its relative permittivity. Done. So this is what we can conclude, right? Good, easy है, and of course I expect that you will tell me if you have not understood something before class or after class, because I need to know. Okay, frankly you have to tell me. So there is a limitation of being frank. Questions kitne पूछो, I don't mind, but I want you to clear your doubts. So easy topic है, there's nothing much here. Now if you remember first chapter of your syllabus, units and dimensions, मैंने तब आपको बताया था कि in later stages हम लोग देखेंगे, हम लोग we will see how to define 1 coulomb of charge, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस हम डिफाइन कर चुके, 1 किलोग्राम डिस्टेंस हम डिफाइन कर चुके, 1 सेकेंड ऑफ टाइम हम डिफाइन कर चुके, 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज, राइट? तो दिस इज द टाइम टू डिफाइन what is 1 coulomb. So let's see what is 1 coulomb. How much is 1 coulomb basically? Okay, so definition of unit charge, unit charge from Coulomb's law, from the Coulomb's law. All right, so let's see how do we define 1 coulomb using Coulomb's law. Easy है. What we know is अगर मेरे पास दो चार्जेस है, right, तो force between them is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th की बैच में मैंने नोटिस किया, हमेशा बाय डिफॉल्ट हर एक बुक में ऐसा लिखा है, सॉरी epsilon 0 लिखा है in every book without mentioning that you are keeping charges in vacuum. तो what I will not like कि next year आप epsilon 0 लिख रहे हो और मेंशन नहीं कर रहे हो कि दो both charges are in vacuum, तो मैं normally epsilon लिखता हूँ, right? Anyways, in this case हम दो चार्जेस को फिलहाल वैक्यूम में ही रख रहे हैं to define 1 coulomb, to define 1 coulomb of charge, right? The force between two charges when kept in vacuum is given by this particular equation, 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, then अब let us say, हम मान लेते हैं let q1 equal to q2 equal to 1 coulomb, है ना? तो जो दो चार्जेस हैं मेरे पास, ये दोनों को दोनों 1 कूलम के चार्जेस है और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, राइट? इसका मतलब मैंने ये पूरा फैक्टर ही 1 कर दिया,
Q11 Q21 R11। तो इस केस में फोर्स क्या आएगा? इस केस में फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो ये जब आप सब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज ऑफ पाई एप्सिलॉन 0, सॉल्व करोगे इन एसआई यूनिट्स, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एसआई यूनिट में चाहिए, तो सब सॉल्व करने के बाद आता है 9 × 10⁹ न्यूटन, राइट, करेक्ट। तो if I set Q1 equal to Q2 equal to 1 coulomb, and if I keep these two 1 coulomb charges at a distance of 1 meter apart, then the force between these two unit charges turn out to be 9 × 10⁹ Newton। तो ये जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू को यूज करके हम लोग 1 कूलम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो पहले क्या था, मेरे पास 1 कूलम का चार्ज था। 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude। अच्छा सुन लो, 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum, क्योंकि एप्सिलॉन 0 लिया था इन वैक्यूम, experiences a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब 1 कूलम वो चार्ज है जो जब आप उस चार्ज को दूसरे चार्ज से 1 मीटर पे रख रहे हो, वो दूसरा चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, मतलब दूसरा चार्ज भी 1 कूलम होना चाहिए, राइट राइट। तो ये जो पहला चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन इफ प्लेस्ड इन वैक्यूम, राइट। So what we are doing is we are defining 1 coulomb very smartly। हमने पहले बोला कि दो चार्जेस ले लो, दोनों का फोर्स कितना है वैक्यूम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by r²। फिर बोलो Q1 को मैं 1 कूलम बोल देता हूँ, Q2 को भी 1 कूलम बोल देता हूँ, डिस्टेंस दोनों का 1 मीटर कर देता हूँ। फोर्स कितना हुआ? 9 × 10⁹ न्यूटन। अब ये वैल्यू यूज करके हम 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। मतलब पहले अज्यूम किया 1 कूलम है, जो फोर्स आया, अब फोर्स का वो वैल्यू यूज करके 1 कूलम डिफाइन करेंगे। कैसे किया? 1 कूलम is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences a force of 9 × 10⁹ Newton। that is how much is 1 coulomb, right। तो इतना आपको पता होना चाहिए। Okay, so if you know this much, we can just go ahead and define जो कुछ भी मैंने बोला है वो पूरा का पूरा अब थियरी में लिख लेंगे, राइट। ओके, we don't need this, we don't, oops, we need this, of course, we don't need this। All right, so let's write down what I have told you। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बट पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके पास दो चार्जेस है और आप उन दो चार्जेस को वैक्यूम में रख रहे हो। अगर आपने ऐसा नहीं बताया तो इफ आई एम चेकिंग योर टेस्ट पेपर्स आई विल नॉट गिव यू एनी मार्क्स। तो अभी तक जो टेस्ट पेपर चेक हो रहे हैं बहुत लाइटली चेक कर रहा हूं मैं। द फोर्स बिटवीन two charges, 2 point charges better, Q1 and Q2 separated by a distance r in free space or vacuum basically
is given by, it is given by, ये जो मैंने नीचे लिख के रखा है, it is given by this. So we already know that f is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, now let q1 q2 is 1 coulomb and r is 1 meter, and therefore you have force is equal to 9 into 10 power 9 Newton. Okay, so from this we can define 1 coulomb of charge using this value of force. We can define 1 coulomb, we can define 1 coulomb. कैसे डिफाइन करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया है, बट विल जस्ट पुट इट डाउन हियर नाउ. I am intentionally going very slow because this is very important. Electrostatic का heavy weightage है for all type of exams. So 1 coulomb is the amount of charge, is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum. ये word नहीं लिखा तो I will not give you any mark for definition. Experiences a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, right? Easy. So that is the end of this small topic. Okay, so बहुत easy here, there's nothing. So next topic, अगला टॉपिक है वापस से कूलम्स लॉ बट इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि अब तक हमने कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखा है. We have not seen Coulomb's law in vector form, and I am again telling you, please refer to my notes because there are a lot of corrections in textbook. Even vector form of Coulomb law जब आप डायग्राम देखोगे तो वो डायग्राम भी सही नहीं है वहां पे. तो 10.4.4 Coulomb's law in vector form. And अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो आई गारंटी यू JEE नीट के क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग लाइक दिस. समझेगा आगे क्यों. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q1 और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q2, राइट. ये दोनों चार्जेस 1 कूलम है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम जस्ट सेइंग दे आर पॉजिटिव चार्जेस. ओके, देन लेट मी ड्रॉ एरो हेड हियर. मैं इंटेंशनली डबल साइड एरो ले रहा हूं, समझेगा व्हाई. ओके, सो this charge is positive charge Q1, this charge is positive charge Q2. The distance between these two charges let us denote by R. To keep it simple, क्योंकि दो ही चार्जेस है तो एक ही डिस्टेंस इन्वॉल्व है इसलिए मैं R बोल रहा हूं. अगर 3 चार्जेस होते तो फिर मैं बोलता R12 डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज, R13 डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज, R23 डिस्टेंस बिटवीन सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज.
because here we have only two charges, matlab only one distance is involved. That's why I am just using, for the sake of simplicity, r. Now there is one more thing that you need to remember here onwards always. जब मैं लिखूंगा F21, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। Q1 भी Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब मैं लिखता हूं F21, मतलब फोर्स लग रहा है सेकेंड चार्ज पे। कौन लगा रहा है? फर्स्ट, है ना? राइट। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मैं लिखता हूं अगर F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये नोटेशन अगर समझ में आ गए तो डायरेक्शंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नेवर। ओके, वन मोर एडवांटेज इज देयर, इफ यू नो दिस नोटेशन, फॉर्मूलाज याद रखने में भी इजी होगा। तो आई विल स्टार्ट विथ एनी वन। मैं बोलता हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू मतलब सेकेंड चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज लगा रहा है, राइट। कौन से टाइप का फोर्स होगा? रिपल्सिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दोनों धक्का देंगे। गो अवे, आई डोंट लाइक यू, राइट। दे डोंट लाइक ईच अदर, धक्का देते हैं एक दूसरे को। दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स। धक्का दे रहा है, कौन धक्का दे रहा है? Q1। किसको दे रहा है? Q2 को। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ड्यू टू वन दिमाग में डाल लो। कौन धक्का दे रहा है? वन। किसको? टू। जब धक्का देते हो तो क्या करते हो? डायरेक्शन तो अवे होना चाहिए ना फिर, राइट। तो दैट इज R12 cap. So R12 cap is a unit vector directed from charge 1 to charge 2, right? So force on charge 2 due to 1 is 1 upon 4 pi epsilon 0, क्योंकि वैक्यूम में थे। Q1 Q2 by R square। यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो है स्केलर फॉर्म। डायरेक्शंस इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तो डायरेक्शंस इज R12 cap। तो देखो समझा होगा तो याद कैसे रहता है? सिर्फ यहां पे 2 1 है अगर, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 1 है तो राइट हैंड साइड पे 1 2 1 2। मैं ऐसा याद रखता हूं, राइट। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट डायरेक्शन इज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज, क्योंकि फोर्स किसने लगाया? पहले चार्ज ने लगाया। किस पे लगाया? सेकेंड पे। तो पहला चार्ज सेकेंड को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, पुल नहीं, पुश। अगर चार्ज Q2 नेगेटिव होता तो डेफिनेटली यस यहां पे 2 1 लिखते, क्योंकि उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होता। ओके, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। देन वापस लिख के दूंगा मैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन आई जस्ट वांट टू, या, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। कौन धक्का दे रहा है? 2। तो डायरेक्शन क्या होगा? 2 से लेके 1 तक, तो ये है R21 कैप, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q1 by R स्क्वायर R21 कैप। यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1 2 1, राइट। और नीचे आपने R12 लिखा, 21 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस है, डजंट मैटर, देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्वड देयर, राइट। तो ऐसा ही याद रखना। मैं बहुत ज्यादा वेटेज से बोल रहा हूं कि ऐसा ही याद रखना, एंड यू विल अप्रिशिएट कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जब हम लोग JEE नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जहां पे 5 स्टेप 10 स्टेप के क्वेश्चंस है, ओरली खत्म होते हैं क्वेश्चंस, इफ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Yes, I can help you crack exams, but terms and conditions are there. Good. तो ये डायरेक्शन हो गया R12 कैप,
ये डायरेक्शन हो गया R21 कैप। तो ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये 2 के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 को पुश कर रहा है, 2 जो है 1 को कर रहा है, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, राइट। गुड। तो लेट अस राइट डाउन दिस मच। ओके, इजी है। सो द फोर्स exerted by charge Q1 on a like charge Q2 can be represented in vector form as, can be represented in vector form as okay, as you have to specify, और क्या लिखा है अच्छे से देख लो, the force exerted by Q1 on Q2, है ना, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है। तो इन शॉर्ट मैं वापस लिख देता हूँ, फोर्स ऑन 2, मैं वापस बता रहा हूँ, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। या ऐसा लिखो, और just not to get confused, or the force on Q2 due to Q1 is given by, बात एक ही है, सिर्फ the use of language ना उतना ही है। So force on 2 due to 1 bar is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R1 2 cap, where R1 2 cap is unit vector directed from Q1 to Q2, right? And R is the distance between Q1 and Q2. Distance between Q1 and Q2, right? Similarly, the force on Q1 due to Q2 is given by F12 bar 1 upon 4 pi epsilon 0। देखो अब क्या है, मैंने यहाँ पे the force exerted by a charge Q1 on a charge Q2, है ना, kept in vacuum, ये important है, for me it is important, okay, so you need to mention that, all right, तो kept in vacuum होना चाहिए। By the way, force on 1 due to 2 is 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R square R21 cap, where R21 cap is unit vector directed from Q2 to Q1. Extremely simple, right? इसका मतलब क्या होता है, बट अभी अगर आपने डायग्राम देखा होगा
R12 कैप और R21 कैप है तो दोनों यूनिट वेक्टर, मतलब दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. बट R12 cap is equal to negative of R21 cap. Therefore, what I can write is F12 bar is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 Q1 by R square. यहाँ R21 होना चाहिए था, मैं 12 कैप लिख रहा हूं और इसको यहाँ पर नेगेटिव कर देता हूं. सिंपल, राइट? या तो ऐसा लिखो, अगर ऐसा नहीं तो फिर व्हाट यू कैन डू इज ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, राइट? तो F21 लिख देता हूं मैं, F21 बार है ना, इस Q1 Q2 बाई R12 होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, है ना यहाँ पे. सो यू कैन राइट डाउन F21. वाई R12 कैप होना चाहिए था, लेकिन R12 कैप क्या है, माइनस R21 कैप है, इसलिए मैंने माइनस लिखा. सिंपल, सिंपल है बहुत. Therefore, what I can say is F21 bar is negative of, what is this by the way? This is F12. F12 मतलब force on 2 due to 1 is equal to minus force on 1 due to 2, which means these are action reaction pairs. Thus, therefore, F21 and F12 are equal in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction. Thus, F21 bar and F12 bar are action reaction pair. Right. So it was very simple thing. कितना simple है? Extremely simple. Okay? Right. तो अगर आपको इतना समझा है, then I can go to next topic, and next topic is again very simple, that is principle of superposition. तो पहले मैं बता देता हूं कि what is principle of superposition and then we will note it down. तो now the question is, हमने अब तक दो चार्जेस की बात की थी. अब मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1 है, Q2 है, then I have Q3, I have another charge Q4, I have some charge Q5. ऐसे n number of charges हैं हमारे पास, right? The question here is, what is the force on charge 1 on any one charge? तो मैं पहला ही चार्ज ले लेता हूं. Due to all other charges, पहले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है? What is the total force? Okay, what is the total force on charge 1 due to all other charges? तो इसलिए मैं लिख रहा हूं F1 बार, है ना. I am interested in knowing what is the total force on first charge 1 due to all other. So it is just a vector sum of force on 1 due to 2, force on 1 due to third charge, force on 1 due to fourth charge, जितने होंगे उतने, force on 1 due to nth charge. So this equation is nothing but principle of superposition. So how can you define principle of superposition? You can say when a number of charges are interacting, मतलब they are exerting forces on each other, then the total force on a given charge, यहाँ पे given charge मतलब first charge ले लिया मैंने, is the vector sum of individual forces
exerted on that given charge due to all other charges. In short, एक को सब मिलके मार रहे हैं एक एक करके, पहले ने आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, राइट। पहले चार्ज पे दूसरा भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब ऐसा, इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहते हो, तो दूसरा जो चार्ज है वो डजंट केयर कि वहां पे तीसरा भी है, चौथा चार्ज भी है, पांचवा भी। हाँ, मैंने फोर्स एक्सर्ट नहीं किया तो वो कर देगा, नहीं, मैं मेरा काम करूंगा तो तेरा काम कर। दैट इज व्हाट इट इज। सो व्हेन you consider force on one due to two, force on charge one due to second charge, you neglect all other charges. I don't care, मैं मेरा काम करूंगा, I will exert force. This is what second charge says. थर्ड भी वही बोलता है, I don't care, सेकंड ने किया होगा force exert, मुझे भी करना है। So this is principle of superposition in simple language, right? सिर्फ इसको आपको properly लिखते आना चाहिए। You need to write things in a proper way, that's it. So let us define, and then I will of course draw a diagram. Let us define what is principle of superposition. So physics is actually very interesting if you really get into it. बोलते हैं ना, समुद्र की गहराई उसमें जंप मारने के बाद समझ में आती है। तो अभी तो आप सरफेस पे हो, अभी तो डेप्थ में जाना बाकी है हमारा, जाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। आई विश वी कुड हैव ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है, बट एनीवेज जो है वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। तो लेट्स राइट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट डज दिस टेल अस, फिर हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ कर ही लेंगे। तो let us first write down statement of this statement of superposition principle. When a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of individual forces on the given charge due to all other charges, right? Easy है, very easy thing, easy definition, easy statement. Number of charges है, एक charge पे जो force है, it is due to all other, in short, right? So let's say, suppose we have n charges, q1, q2, q3 up to qn, situated in free space in a discrete manner. ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मतलब सारे के सारे चार्जेस एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे आ गए तो कंटिन्यूस हो गया ना। डिस्क्रीट मतलब एक एक पॉइंट पे, फिर गैप, फिर दूसरा चार्ज, फिर गैप, फिर तीसरा चार्ज, दैट इज डिस्क्रीट, राइट? सो they are situated in free space in a discrete manner as shown in figure. I'll draw figure as shown in figure. Okay, then इसके आगे I will not type because it's not possible. So let us say you have charge q1 here,
Q2 here, Q3 probably here, and Q4 and so on. So you have n charges, Qn. So also we need to specify distances. तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज R12, R13, R14, R1n. तो R12 डिस्टेंस, R13 डिस्टेंस, 13, R14 and R15 distance. Right. Okay. Good. Then let F12 bar, F13 bar, F1n bar be the forces exerted. किसने फोर्स लगाया? Q2, Q3, Q4, Q5 ने किस पे लगाया? Q1 पे. So let F12, 13, 1n bar be the forces exerted on Q1 due to charges Q2, Q3 and Qn respectively. Right? Okay. Then according to principle of superposition या superposition principle, then according to superposition principle, total force F1 bar on Q1 is given by F1 bar is equal to F12 bar plus F13 bar plus F14 bar. जितने चार्जेस होंगे सारे के सारे चार्जेस अपना अपना काम करेंगे. They will all exert force on first charge. और ये F12, F13 these are determined by, these are determined by Coulomb's law. Here F12 bar, F13 bar and so on, F1n bar are determined by Coulomb's law. क्योंकि हमको पता है Coulomb's law just tells us force between two charges is determined by Coulomb's law. Right? Easy. Okay. Then therefore what you can do is F1 bar will be equal to, आपको पता है F12 क्या आएगा? मैंने ऑलरेडी बताया 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 square, क्योंकि अभी यहाँ पे डिस्टेंसेस मैटर करेंगे. और मैंने ये भी बताया था अगर आप यहाँ पे 1-2 लिख रहे हो तो जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, मैं यहाँ पे 2-1 लिखूंगा, R21 स्क्वायर लिखूंगा और R21 कैप लिखूंगा. इट रियली डजंट मैटर कि आप Q1 Q2 लिख रहे हो या Q2 Q1 लिख रहे हो, R12 स्क्वायर लिख रहे हो या R21 स्क्वायर लिख रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रोडक्ट तो 2 into 3 या फिर 3 into 2 6 ही आता है. डिस्टेंस आप A पॉइंट से B पॉइंट में मेजर करो या B से A में करो तो भी सेम होता है, बट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता बिकॉज डायरेक्शन मैटर्स. इसलिए यहाँ पे आप R12 स्क्वायर लिखो, R21 स्क्वायर लिखो, डजेंट मैटर. तो आपके ऊपर है, वो सिर्फ याद करने की ट्रिक थी. प्लस F13 क्या आएगा? Q1 Q3 by R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस nth का क्या आएगा? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Qn
अपॉन r1n² rn1 कैप। इन सब में से मैं अगर 1/4πε0 कॉमन निकाल लेता हूं, और Q1 भी कॉमन निकल सकता है, पर मैं नहीं निकालने वाला क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर, so you will get a pattern out of it. Okay, plus Q1 Qn अपॉन, जगह थोड़ा कम है तो देखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं उसका। ओके, राइट। All right, therefore R1n square rn1 कैप, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट, राइट। So let me quickly revise what we have done so far. तो मैंने कल जहां रुके थे वहां से आगे स्टार्ट किया। कुछ नहीं है, हमने वैक्यूम में दो चार्जेस लिए, फिर वाटर में लिए। हमको पता है कि वैक्यूम में और वाटर में जब चार्जेस लोगे तो फोर्स चेंज होगा और फोर्स रिड्यूस होगा बाय अमाउंट एप्सिलॉन आर। तो बस रेशियो लिया है, एंड देन वी हैव प्रूव्ड दैट इन वाटर द फोर्स between two charges is 1/80th times of in vacuum. Then we have defined यूनिट चार्ज, 1 कूलम मतलब कितना चार्ज, फ्रॉम कूलम्स लॉ। हमने बोला कि पहले दो चार्जेस को वैक्यूम में रख दो, तो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। फिर हमने बोला Q1 Q2 और को 1 कूलम मान लो और r को भी 1 मीटर मान लो, तो फोर्स आ गया 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो फिर हमने बोला कि 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum, it experiences a force of 9 Newton per 9 Newton. So it experiences a force of 9 into 10 power 9 Newton, right? Easy. Then we just wrote Coulomb's law in vector form. सिर्फ डायरेक्शंस इन्वॉल्व कर दिए मैंने। अगर फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1 है, सेकेंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हैज डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले चार्ज पे फोर्स बिकॉज ऑफ सेकेंड, डायरेक्शन इज फ्रॉम 2 to 1, राइट। और हमने प्रूव कर दिया कि F21 और F12 दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर है। फिर अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस है तो क्या करना, पहले चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, तो पहले और दूसरे का फोर्स, पहले और तीसरे का, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन, लाइक दिस। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज निकालना है, तो कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, और सबको ऐड करते जाओ। That is principle of superposition. We'll stop here and we'll continue in the next session.